प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स। आप किस तरह से प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को बहुत तेजी से रफ्तार देने के लिए, बहुत तेजी से बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप ना किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से बात करिए कि ऐसा कौन सी जगह थी, ऐसा कौन सा वो मूवमेंट था when they decided to take up this business seriously and build this business seriously. Invariably 100% of them, all of them will tell you about one program जिसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। Everybody, every network marketing leader had a breakthrough moment in one program। एक जिंदगी थी उससे पहले की जिंदगी और एक जिंदगी है उसके बाद की जिंदगी। Every one of us got, मेरे साथ भी यही हुआ, आप में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, या फिर आपकी कंपनी में जितने लोग हैं ना टॉप लेवल पे, उनसे आप कभी बात करेंगे ना, everybody will tell you about one moment in one program कि इसके बाद जिंदगी एकदम बदल गई। No, like my sponsor in my business, मैं आपको अपना बोलता हूँ। First time I was asked to get into this business in May 2006। और जो मेरे sponsor थे, मेरे upline थे, he came to my office and 13 months, we kept on, discussing, postponing, arguing about all these things. Even after I think 1 year, I allowed him to share the business opportunity with me. Otherwise, तो मैंने उनसे business opportunity तक बात करने तक का मौका नहीं दिया उनको. And he invited me to one event. Just remember this, my dear friends. May 2006, first time मैं और मेरे upline मिले. And he wanted to start the process of getting me into the business in May 2006. 13 महीने के बाद 17 जून, मुझे आज भी याद है, 17 जून 2007 को I attended my first event. He convinced me to get into that first event, and after that life was never the same again. एंड मुझे आज भी याद है उसमें मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मैं कैसा दिखता था, क्या क्या हुआ मेरे साथ, एवरीथिंग आई रिमेंबर यार. बट देयर वाज वन लाइफ बिफोर 17th of June 2007 एंड देयर वाज वन लाइफ आफ्टर 17th of June 2007. उसके बाद अगस्त 2007 में ही आई गॉट अ चांस टू अटेंड वन मोर इवेंट. आई वेंट टू मैंगलोर एंड फ्रॉम मैंगलोर आई वेंट टू ऊटी फॉर अ 3-4 day इवेंट. मैंगलोर वाज अ ह्यूज इवेंट विद 2-3,000 पीपल. आई हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर इन माई लाइफ. एंड नॉर्थ इंडिया में उस समय में हमारी कंपनी के इवेंट्स हुआ ही नहीं करते थे उस बड़े स्केल के. तो आई वेंट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर. पहले मैंगलोर का इवेंट अटेंड किया, देन वी वेंट टू ऊटी एंड ऊटी वाज लाइक, आई वाज थ्रिल्ड. 4 days ऑफ रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम. और मुझे आज भी याद है मैं शर्ट पहन के गया था एंड देयर वर 250 पीपल इन दैट प्रोग्राम इन ऊटी एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज इन अ शर्ट. आई मीन आई वाज देयर इन अ ब्लू शर्ट. आई डिडंट इवन हैव अ टाई आल्सो विद मी. एंड what happened after that, like I think मैं पूरी रात नहीं सोया और it was something else. December 2007, then again I went to Bangalore and it was just mind-blowing program. I was in awe. हर प्रोग्राम ने मेरे फेथ को दुगना तिगुना नहीं किया, कई गुना बढ़ा दिया. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, अरे ये भी कर गया, वो भी कर गया, उसने भी कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. And it was just magical. And I believe programs जो कर सकते हैं ना जिंदगी और कोई नहीं कर सकता. What programs can do in our lives, nobody can do. Programs are just magical. We call programs events also, and programs or events, whatever you call them, it's line of our business. It's my 12th year in the business when I'm getting passive income. Who you think is running my business, or what do you think is running my business? Programs. Not Deepak Bajaj. Not Deepak Bajaj. I am not running the business. वो 150-200 हॉल्स हैं जहाँ पे हर हफ्ते हमारी मीटिंग्स हो रही हैं. They are running my business, and because of that, I'm enjoying financial freedom for 11 years now. See, I have told you about programs in so many different lessons. And in so many different ways. I hope you remember, I need not repeat it now. Thermometer versus thermostat. Best of the leaders are thermometers, but a program is a thermostat. I told you about I is equal to n square, और n जो है number of active distributors. अगर कोई शख्स प्रोग्राम में आ रहा है तो मैं बात शुरू करूंगा उनसे कि वो शायद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन फॉर एन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, whether they are attending program or no. See, my feeling is, and my belief I must say, and this is being strengthened every single day since 13 years, and that is, you cannot move an inch in network marketing without programs.
Be very clear about it. Many times now distributors try to bypass programs. They arrange small meetings with their teams, with the top leaders. और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी के ड्राइंग रूम में, किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे 5, 10, 15 लोगों को अपने सीनियर क्राउन से मिलवा दिया, डायमंड से मिलवा दिया, तो समझिए काम बन गया, and it's a substitute for the program. It's absolutely wrong. Best of the leaders also, they need energy. They need platform, they need edification, and they need a program stage to deliver their full potential. एक leader जो program में कर सकता है, that is infinitely larger what the same leader can do in a drawing room. एक leader जो drawing room में कर सकता है ना, उससे कई गुना असीमित आकार दे सकता है वो अपनी प्रतिभा को, और जो वो काम कर सकता है उसको, अगर उसे एक स्टेज मिल जाए तो. Why I recommend program? One key reason is programs have the power to change beliefs. Beliefs are everything. Size of our dreams is directly proportional to size of our beliefs. एस्टैब्लिश कर चुके हैं, हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस इन यू, एंड बिलीफ को चेंज करना सिर्फ एक जगह पे पॉसिबल है, एंड दैट इज प्रोग्राम. व्हाई आई हाईली रिकमेंड प्रोग्राम इज बिकॉज प्रोग्राम्स हैव द पावर टू चेंज बिलीव्स. प्रोग्राम्स ना पुराने गलत बिलीव्स को crush कर सकते हैं. They can thrash old wrong beliefs and they can build new empowering beliefs right there in that event, in those 4 hours, 6 hours, 8 hours, 2 days, 3 days, whatever is the duration of the event. When you see thousands of people under one roof, एक छत के नीचे हजारों लोग हैं, उन्होंने टिकटें खरीदी हैं, बहुत दूर से आए हैं, some have taken flights, some have taken buses, cars, trains. एक बहुत बड़ा एक संगठन इकट्ठा हुआ है. They are dressed up professionally, they are excited, and आप वो एनर्जी देखते हैं जो आपसे आज से पहले आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होती. बिकॉज इन कॉर्पोरेट इवेंट्स यू डोंट गेट दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल. देयर इज नंबर 1 एंड नंबर 2, इवन इफ यू गेट देम यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, और ये सारी चीजें ना आपका माइंड शिफ्ट करा देती हैं. व्हेन योर डिस्ट्रीब्यूटर्स और व्हेन योर प्रोस्पेक्ट्स, व्हेन दे सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो लाइन लगा के खड़े हैं अंदर आने के लिए, दे गॉट टू बिलीव बॉस इट्स नॉट 1 or 2 पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस. पूरा शहर इस बिजनेस को करने के लिए, पूरा देश इस बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा हो गया. सडनली ना जो कंपनी ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, जो ये मेरे ड्राइंग रूम में आके 3 लोग मुझे रोज बातें करते हैं, आज अचानक से वही कंपनी ऐसे लगने लगता है ये पूरे शहर की सबसे फेमस अगर कोई कंपनी है तो यही है. एक फैक्ट उनके दिमाग में ना ये घर कर जाता है, मालूम क्या? मैं करूं तो ठीक, नहीं करूं तो ठीक, ये बिजनेस तो दौड़ने वाला है, ये बिजनेस तो उड़ने वाला है. दिस बिजनेस इज नॉट गोना स्टॉप. मेरी मर्जी है मैं करता हूं या नहीं करता हूं. और मैंने आपसे एक फोमो करके कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड व्हेन पीपल सिट इन दैट प्रोग्राम, समटाइम्स प्रोग्राम्स आर सो जैम पैक्ड, पीपल डोंट लीव देयर चेयर, क्योंकि अगर उन्होंने बाई चांस कुर्सी छोड़ दी तो जब वो वापस आएंगे ना पानी पी के, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी. इट्स सच ह्यूज एटमोसफेयर इज देयर एंड इट्स गेट्स इन देयर हेड. बस ये काम तो चल रहा है, मुझे अब देखना है मैं चलना चाहता हूँ या नहीं चलना चाहता. एंड देन दे लिसन टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी पीपल जो स्टेज से शेयर किए जाते हैं. और जब वो हर इंसान की कहानी सुनते हैं जो स्टेज से बात करता है ना, देन दे गेट दिस बिलीफ कि सबकी जिंदगी में स्ट्रगल और डिसअपॉइंटमेंट्स तो आए थे, सबने जीरो से शुरू किया था. एवरीबडी हैड दिस डे जब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनके आईडी में लेफ्ट में भी कोई नहीं था, राइट में कोई नहीं था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 4 5 6 नथिंग वाज देयर, नो डेप्थ वाज देयर, नो विड्थ वाज देयर. दे स्टार्टेड अलोन विद वन सिंगल बिजनेस आईडी. नोबडी वाज देयर. सबके अपने डाउट थे, सबको अपना डर लग रहा था, सबके अपने चैलेंजेस थे. किसी को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, किसी को ऑफिस से सपोर्ट नहीं मिला, किसी के साथ ये स्ट्रगल आया, किसी के साथ वो स्ट्रगल आया. सडनली वहां बैठ के ना आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को लगने लगता है यार मेरी स्ट्रगल तो ठीक है यार, यही संभालना ठीक है, इनको देखो यार, अगर ये लोग इतनी सारी स्ट्रगल्स के बाद भी काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं. एवरीबडी इन दिस बिजनेस इज एन ओवरकमर. They overcame their fears, their struggles, their rejections, their disappointments to become an achiever, to come on the stage. और उन्हें ये विश्वास आता है, मालूम क्या, कि बॉस अगर मैं भी नहीं छोड़ूंगा ना, if I don't quit, I will also be an achiever. और उन्हें ये रियलाइज हो जाता है. आप ना कितना भी उन्हें समझा लीजिए उनके ड्राइंग रूम में बैठ के उनकी काउंसलिंग करके, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम कर सकते हो, लेकिन जब वो स्टेज से उस दिन उस माहौल में, उस दिन जब वो बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो ये अंदर जहन में बैठ जाती है बात, और इतना कॉन्फिडेंस आता है उनको कि बॉस अगर ये सारे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सारे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. एक और, ये सारे लोग जितने स्टेज पे दिख रहे हैं, आई हैव एक्सेस टू देम, ये सब मेरी मदद करने को भी तैयार है, जब चाहूँ इनसे मदद भी ले सकता हूँ. आई मीन दिस इज फिनोमिनल.
And when you and your associates see achievers on stage from different backgrounds, different age, different city, different gender, different education, different financial background, different location, तो अगर इतने सारे अलग अलग तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो बस फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? They get this faith from deep inside. If so many people can do it, I can also do it. So many people can do it, I can also do it. And sometimes कोई एक स्टेज से कोई एक लीडर कोई एक बात बोल देगा और वो एक बात ना अंदर यहाँ जहन में बैठ जाती है, दिल में घर कर जाती है वो वाली बात, और वो वाली बात हमें क्विट नहीं करनी थी, और वो वाली बात हमारी वजह बन जाती है उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने का. एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू सी न्यू अचीवर्स वॉकिंग ऑन द स्टेज, और पीछे से पटाखे वटाखे चल रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, दे हैव अ ग्रैंड एंट्री ऑन द स्टेज, तो अंदर से यार आवाज आती थी, बॉस एक दिन मेरे को भी ये चाहिए मेरे लिए. आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम ग्रैंड एंट्री फॉर माई सेल्फ. आई ऑल्सो वॉन्ट द स्टेज फॉर माई सेल्फ. एवरी सिंगल टाइम आई यूज टू टेल माई सेल्फ व्हेन आई यूज्ड टू सी अचीवर्स ऑन द स्टेज, वन डे आई विल बी देयर, वन डे आई विल बी देयर. और ना मैं कई बार मेरे लाइव वर्कशॉप्स में, बूट कैंप्स में ये वाली बात बोलता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम में बैठा था ना, तो मैं बोलता था उन्हें, पहले एक दो कुछ प्रोग्राम्स जो मेरे थे और खूब तालियां बजवा रहे थे हमारे जो स्टेज पे होस्ट थे, और मैं मन मन में मेरे अंदर से अपने आप से ये बोल रहा था, आज जितनी चाहे उतनी तालियां बजवा लो, लेकिन एक दिन ऐसा कारनामा करके दिखाऊंगा, ये पूरा स्टेडियम मेरे लिए तालियां बजाएगा. लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. यू नो I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और अगर आपको ये I इज इक्वल टू एन स्क्वायर याद में नहीं है तो भी आप मुझे एक चीज़ बताइए. एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके साथ 10 लोग इवेंट में गए, और दूसरे हैं जिनके साथ 100 लोग इवेंट में गए. आप कॉमन सेंस के हिसाब से बताइए किसका बिजनेस ज़्यादा चलने की संभावना है आने वाले महीनों में. इट्स वेरी सिंपल. और अगर आपको ये लगता है कि नहीं जी मैं तो प्रोग्राम पे कन्विंस हूँ, प्रोग्राम तो ज़रूरी होते हैं, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर ऐड करना चाहूँगा. ऑलवेज रिमेंबर, वी आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और अटेंडिंग इवेंट ओनली फॉर वन थिंग, वी वांट बेटर रिजल्ट्स. रैंक बड़ा होना चाहिए, इनकम बड़ी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, विड्थ और डेप्थ खड़ी होनी चाहिए. एंड अगर किसी प्रोग्राम से अपने को रिजल्ट नहीं मिले ना, तो फिर समझिए वो प्रोग्राम हुआ ही नहीं. वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स. एंड नाउ सिंस आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस फैक्ट एंड इंस्टॉल्ड दिस प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स, आई जस्ट वांट टू डिस्कस today in this special lesson about how to get maximum results from the events, and ये 3 स्टेजेस होती हैं. उन तीनों स्टेजेस के ऊपर हम इस लेसन में बात करेंगे, एंड उन तीनों स्टेजेस पे क्या क्या करना चाहिए दैट वी विल डिस्कस. एंड आई रियली वांट यू शुड गेट मैक्सिमम रिजल्ट फ्रॉम एवरी सिंगल इवेंट. स्टेज नंबर 1 इज बिफोर द इवेंट, इवेंट से पहले. स्टेज नंबर 2 प्रीटी सिंपल इज ड्यूरिंग द इवेंट, एंड स्टेज नंबर 3 इज लास्ट इज आफ्टर द इवेंट. और ये तीनों स्टेजेस को एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को कंट्रोल करना चाहिए. इन तीनों स्टेजेस में जो काम होने चाहिए बेसिकली वो सारे काम अगर हम करेंगे, देन वी कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स फ्रॉम एवरी सिंगल इवेंट. अगर हम बात करें बिफोर द इवेंट की, तो आपका सबसे जरूरी काम क्या है? promotion of the event. Your key task before the event is promotion of the event, and you have only one goal. एक ही लक्ष्य रहता है आपका, वो क्या? How to get maximum people to this event. How to get maximum people to this event. And then you promote this event as if your life depends entirely on this program. ये बात बहुत वजन वाली है और इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि प्रोग्राम को इस कदर प्रमोट करिए, इस कदर उस प्रोग्राम की प्रमोशन करिए कि समझो यार मेरी जिंदगी पूरी की पूरी पे लगी है सिर्फ इस एक इवेंट पे. इट्स नाउ और नेवर. इस इवेंट से ही जिंदगी बनेगी. लाइक दैट वी नीड टू प्रमोट. यू हैव टू वेज टू लुक एट एन इवेंट. नंबर वन इज दिस इज ए इवेंट, और दूसरा दिस इज द इवेंट. And I want every event that you decide to promote. कुछ इवेंट होगा जो तुम्हें लगता है यार प्रमोट नहीं करने, मत करना, चलेगा. But if you decide to participate in one particular event, boss, फिर उसको ऐसा प्रमोट करना जैसे this is the event. अपनी लाइफ लगी हो इस प्रोग्राम पे, उस तरह से प्रमोट करिए. Be genuinely enthusiastic about the event. ऐसा enthusiasm होना चाहिए कि आपको प्रमोशन की बात ही ना करनी पड़े. इवेंट का नाम आए और तुम्हारा चेहरा खिल जाना चाहिए और तुम्हारी एक अलग तरह की एनर्जी बाहर दिखने लग जानी चाहिए. वी नीड टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल. वी नीड टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल. और याद रखिएगा, इन्विटेशन और इंटीमेशन में मैंने आपको फर्क बताया था. वी हैड अ स्पेशल चैप्टर ऑन दिस. इंटीमेशन होता है सूचना देना और इन्विटेशन होता है इनवाइट करना. सूचना देना क्या, ये इवेंट इस दिन हो रहा है, इतने बजे हो रहा है, आना चाहो तो आ सकते हो. दिस इज कॉल्ड सूचना देना. एंड इन्विटेशन इज
आई वॉन्ट द मनी एंड आई वॉन्ट द कन्फर्मेशन दैट यू नीड टू बाय टिकट्स, मैटर ओवर। और जो भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके इवेंट्स के लिए कोई वीडियोस हैं, ब्रोशर्स हैं, कुछ भी है, तो देन यू यूज मैक्सिमम। एंड रिमेंबर दिस नाउ, गांठ बांध के रखिएगा, आई मेड दिस मिस्टेक इन फर्स्ट फ्यू इवेंट्स, प्रमोशन ऑफ द इवेंट इज नॉट कंप्लीट टिल द टाइम योर पीपल रजिस्टर देमसेल्व्स और दे पे फॉर इवेंट टिकट। पैसा आएगा यार तो कंफर्मेशन है इवेंट की, अदरवाइज नहीं। पूरा देश तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन एक भी नहीं आएगा। आपको टिकट जब तक सेल नहीं हो जाते इवेंट के, तब तक प्रमोशन कंप्लीट नहीं है। और जब आप इवेंट की प्रमोशन में लगे हैं, उस टाइम पे रेगुलर सेल्स होते रहना चाहिए, याद रखिएगा। आई नो सम पीपल जिन्हें ऐसा लगता है सर अभी आप कुछ मत कहो, अगले 3 हफ्ते ना हम सिर्फ इवेंट की प्रमोशन में लग जाएंगे और सेल्स वेल्स बंद कर देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट देयर बिजनेस क्रैशेस लाइक क्रेजी, और 6 महीने लग जाते हैं बिजनेस को दोबारा आने में। तो इस बहाने को मत बनाइएगा बॉस कि मैं इवेंट की प्रमोशन में लगा था इसीलिए सेल्स कम हो गई। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो इवेंट से पहले वाले महीने में आप मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं। यू नीड टू प्रमोट द इवेंट इन अ वे कि बॉस अगर तुम मैक्सिमम सेल्स करोगे तो तुम्हारा रैंक ऊपर आएगा, और ऊपर वाले रैंक पे जाकर तुम्हें प्रोग्राम में, इवेंट में रिकॉग्निशन का मौका मिलेगा, स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। और इसको सम पीपल आर देयर एंड फ्यू मंथ्स आई ऑल्सो वर्कड विद दिस मेंटालिटी कि इवेंट के बाद चीजें बदलेंगी, इवेंट के बाद में देखेंगे। मुझे तो इवेंट को आज ही एनकैश करना है और इवेंट से पहले चीजों को बदल देना है। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड एंड दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट वी नीड टू हैव, एंड विद दैट काइंड ऑफ अ फोकस वी नीड टू वर्क। और लिस्टें बना के प्रमोट करिए, अंधाधुंध मत प्रमोट करिए। हर एक एसोसिएट को बोलिए वो लिस्ट बनाए और लिस्ट बना के जबरदस्त प्रमोशन करिए। और कितनी देर का इवेंट है, कैसे कैसे आना है, एवरीथिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू गिव टू योर पीपल एज सुन एज दे बाय द टिकट्स। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए इवेंट है 8 घंटे का, आपने बोला बस यार 2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है, फिर उसमें से किसी को कुछ काम हो गया, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब करता रहेगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूज प्रोग्राम्स एज एन अपॉर्चुनिटी। और प्रोग्राम से कमाल का अवसर होते हैं पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सोए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापिस से एक्टिवेट करने का। रिमाइंडर्स भेजना मत भूलिएगा, रिमाइंडर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। आपको ये मत सोचिएगा कि लोगों ने पैसे दे दिए तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। इवन आफ्टर पेइंग मनी देयर आर 20% पीपल हु डोंट टर्न अप। यू नीड टू सेंड रिमाइंडर्स टू पीपल। और मैक्सिमम रैंक अचीवर्स, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम रैंक अचीवर्स निकालिएगा, मैक्सिमम लोगों को स्टेज पे रिकॉग्निशन के लिए आप कोशिश करिएगा। यू रिमेंबर लेसन नंबर 42, लेसन नंबर 43 में हमने डिस्कस किया था राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट, माइलस्टोन इन फर्स्ट 3 मंथ्स। और उसमें ये दोनों चीजें आती हैं। नंबर 1 दे नीड टू अटेंड अ मेगा इवेंट, बिग इवेंट दे नीड टू अटेंड, एंड नंबर 2 दे नीड टू गो ऑन स्टेज। तो आप कोशिश करें कि पीपल, मैक्सिमम पीपल फ्रॉम योर टीम दे शुड बी ऑन द स्टेज। जब प्रोग्राम की प्रमोशन की बात आती है ना, तो एक बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। गलती पता क्या है? लोग ना सेल्स के लिए जब जाते हैं तो जान लड़ा देते हैं यार, मतलब फॉलो थ्रू पे फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू पे फॉलो थ्रू, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग बिफोर मीटिंग, फोन कॉल्स, टूल्स, एवरीथिंग। बट जब वो सेल आ जाती है और उसके बाद अब उनको इवेंट में लेके जाना होता है, 10% भी जोर नहीं लगाते हैं। आपने जो पहले वाला काम किया, आपने उनको बिजनेस में लाने के लिए जो भी प्रोसेस किया, आपकी इच्छा क्या थी? लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, सेटिंग अपॉइंटमेंट, शोइंग द प्लान, फॉलो थ्रू, सेल्स क्लोजिंग, ये सब आपने की। 7 चीजें की आपने। व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग इट? टू गेट वन yes that I am ready to start business with you or I am ready to buy some products with you। उस yes से आपको कितने पैसे मिलने वाले थे? How much commission will you earn? 500 रुपए, 1000 रुपए। अब सोचिए, अगर वो इवेंट के लिए हाँ कर गया और उसका बिलीफ, उसका फेथ अगर बदल गया, तो उसके बाद कितने पैसे आ सकते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। असीमित इनकम हो सकती है, असीमित पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो एक इंडिविजुअल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है, एक बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है उस एक प्रोग्राम में। और ये जो प्रोग्राम के लिए जो वो यस बोलेगा ना, ये वाली यस असीमित संभावनाओं वाली यस है। अगर 1000 रुपए एक बार आएंगे उस यस के लिए, तुम एक महीना लगा सकते हो, 6 7 चक्कर लगा सकते हो यार। तो फिर ये वाली यस आप सोचो कितना पावरफुल है। इसके लिए क्यों तुम्हें 70 चक्कर लगाने पड़े ना, देन ऑल्सो आई हाईली अर्ज यू एंड रिकमेंड यू मस्ट गो फॉर इट। और एक चीज और बोलता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटीमेशन
वर्सेस इनविटेशन। वैसे एक और कैटेगरी होती है अनाउंसर वर्सेस प्रमोटर। सम पीपल आर अनाउंसर्स, वो ना खबर देते हैं प्रोग्राम है प्रोग्राम है प्रोग्राम है प्रोग्राम है, बट आई वांट यू टू अडॉप्ट सेकंड कैटेगरी, दैट इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है यार? प्रमोटर इस इवेंट को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहली लाइन मैंने दोहराई थी कि ना यू नीड टू प्रमोट दिस इवेंट एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और वो पूरा समय प्रोग्राम की बातें करते रहते हैं। दे लिव प्रोग्राम, ब्रीथ प्रोग्राम, ईट प्रोग्राम, एंड दे डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग इवेंट फॉर ग्रांटेड। अपने आप लोग आ जाएंगे, मैंने तो कह दिया, पता नहीं लोग आए क्यों नहीं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिंदगी में एक चीज याद रखनी है, यू विल ईदर गेट एक्सक्यूज और यू विल गेट सक्सेस। या तो आपको बहाने मिलेंगे या आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। आपकी प्रमोशन तब तक पूरी नहीं हुई जब तक आपके एसोसिएट्स ने पैसे नहीं दिए, टिकट्स नहीं खरीदे। और एक और बात, लोगों के बहाने, लोगों की कहानियां मत सुनिएगा, एक्सक्यूज़ मत सुनिएगा इवेंट को ना अटेंड करने के लिए। नेवर बिलीव देयर स्टोरी। वो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मेरे कज़न की शादी है, मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा आ गया, बच्चे के साथ ऐसा आ गया, पीटीएम में जाना पड़ेगा, रिलेटिव्स हैं यार, वाइफ को ऐसा कमिट किया हुआ है। दे आर मेकिंग ऑल दिस स्टोरीज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, दिस इवेंट इज नॉट देयर प्रायोरिटी, दिस बिजनेस इज नॉट देयर प्रायोरिटी। और हम इस इवेंट में उनको लेके क्यों जाना चाहते हैं? ताकि ये बिजनेस उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बने। उनकी कहानियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनकी स्टोरीज को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टाइम टू टेल देम योर शेयर ऑफ स्टोरी, योर शेयर योर एक्सपीरियंस, मेक देम अंडरस्टैंड द पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इवेंट। और ये इवेंट उनकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है? बाकी सारे काम पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन ये इवेंट इस दिन संडे को शाम को जो ये हो रहा है, ये ज़िंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज माय डियर फ्रेंड। आई यूज टू बिलीव पीपल स्टोरीज, और मुझे लगता था वो सच बोल रहा है, मुझे लगता था वो जेन्युइन बोल रहा है, लेकिन बाद में समझ आया इट्स नॉट अबाउट एनी अदर स्टोरी, इट्स अबाउट प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड्स। और ना मैंने आपको इनविटेशन के चैप्टर में एक चीज कही थी, एक समय जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से चाहिए, मान लीजिए 4 घंटे का समय जो आप उनसे मांग रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 पीपल और सिचुएशंस आर आस्किंग फॉर दैट सेम 5 hours 4 hours दैट यू आर आस्किंग। आपका इन्विटेशन इतना ठोस, इतना मजबूत होना चाहिए कि उन 50 पे भारी पड़ना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट द स्टोरी, टेल योर स्टोरी। एक बार आपने इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस उनके जहन में बिठा दी, everybody will change their mind, I'm telling you। हो सकता है किसी को 2 मीटिंग लगे और हो सकता है किसी को 5 मीटिंग लगे, बट you keep on going my dear friends, we need people in the event, we need people in the event। और इवेंट के दौरान इट्स वेरी सिंपल यार, सिट इन द फ्रंट रो, और या फिर अगर आप अभी एलिजिबल नहीं है फ्रंट रो में बैठने के लिए, तो आप स्टेज से जितना नज़दीक बैठ सकते हैं उतना नज़दीक बैठने चाहिए। वो फाइल फोन हैज़ टू बी स्विच्ड ऑफ। और अगर आपने कुछ 6 लोगों को बुलाया था, उन्होंने टिकटें खरीद रखी थी, 3 आ गए, बाकी 3 नहीं आए, उनके लिए ना पोस्टमैन बन के, चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड बन के इवेंट के बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है। टेल देम आई एम स्विचिंग ऑफ माई फोन नाउ, यू हैव द टिकट, प्लीज कम एंड टेक योर सीट्स एंड अटेंड द इवेंट्स। Right now my phone will be switched off because I am going to attend the event with lot of my associates। ये मैसेज डाल दो, फोन बंद करो, वहां बैठो और पूरा इवेंट अटेंड करो। समय से पहले पहुंचो, अपने टीममेट्स को साथ में लेके पहुंचो और पूरा इवेंट अटेंड करना। अगर बाकी सारे लोगों को जाना है तो वो जाने देना, बट यू नीड टू बी देयर इन द इवेंट। एंड वन मोर थिंग, डोंट जस्ट सिट देयर, बी द मोस्ट एक्साइटेड पर्सन ऑफ होल स्टेडियम। उस पूरे स्टेडियम के सबसे एक्साइटेड इंसान तुम होने चाहिए। यू शुड क्लैप, यू शुड shout, you should jump, you should take photos as if ये तुम्हारी जिंदगी का पहला इवेंट हो। You should be surprised, you should be excited, you should be jumping। बैठना तो है ही नहीं यार, उछलते रहो, सीट पे बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े रहो। एंड इंट्रोड्यूस योर टीम टू ऑल योर सीनियर्स। जहां भी आपको सीनियर्स जो मिलते जाएं, सबके साथ, अपने सीनियर्स के साथ में लोगों को इंट्रोड्यूस कराइए, उनके साथ में फोटोस लीजिए। इट्स रियली रियली पावरफुल। अगर वहां टूल्स वगैरह सेल हो रहे हो तो अपनी सारे टीममेट्स को टूल्स वगैरह खरीदवाइएगा। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड माय डियर फ्रेंड। यू नीड टू, उनका हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है टूल के काउंटर पे और पैसे दिलवाने पड़ते हैं यार। और अगर बाय चांस 1% इफ एनीथिंग हैपेंस रॉन्ग इन द इवेंट, एनीथिंग कुछ हो गया यार जो नहीं होना चाहिए था इवेंट में, तो अपने टीममेट्स के साथ मिलके कंप्लेन मत करो, स्मार्टली हैंडल करो। आफ्टर द इवेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल। इवेंट खत्म होने के बाद इवेंट अच्छा या खराब था उसको कभी एनालाइज मत करना 1 या 2 लोगों की फीडबैक के हिसाब से। अगर आप प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे और अगर 1-2 वैल्यूएबल जेन्युइन फीडबैक मिले तो अगले प्रोग्राम को, अगले इवेंट को सुधारने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये कमाल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है, ये यहाँ काम करते हैं।
It's not about knowledge, my dear friends. Event is about here. Event is about belief shifts. Program works at different level with different people. We don't know किसको क्या बात जम गई और किसको क्या समझ आ गया. मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बिजनेस को ना करने की किसी के पास 100 वजह हो सकती हैं, लेकिन करने की सिर्फ एक वजह चाहिए, और उसे अगर एक वजह उस एक इवेंट में मिल गई ना, आप समझिए काम बन गया. लेकिन एक बात याद रखना, इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए इवेंट खत्म हो गया उसी दिन, लेकिन आपके लिए गेम तब शुरू हुई है. जितने भी लोग इवेंट में आए हैं, सबकी लिस्ट आपके पास अगले दिन तक पहुंच जानी चाहिए कि आपकी टीम से कौन कौन से वो 600 लोग थे जो इवेंट में आए थे. अगर कोई गेस्ट आए थे, संडे को इवेंट था, बाय थर्सडे मैक्सिमम विद इन 2 to 4 days सबके फॉलोअप्स हो जाने चाहिए. और जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इवेंट में आए थे, या तो आप खुद या आपके कुछ की एसोसिएट्स, वी नीड टू मीट दोज पीपल एंड डू सम प्लानिंग वर्क विद देम एंड स्टार्ट अग्रेसिव वर्किंग विद देम. प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम 2 चीजें करता है. लोगों का फेथ बनाता है, और दूसरा उनको इंस्पायर करता है ताकि वो भी अचीवर बनकर अगली बार स्टेज पे आए. अब वो काम करने के लिए तैयार हैं, फेथ के साथ और रेडीनेस के साथ तैयार हैं. वो अब वो सिस्टम फॉलो करने के लिए हाँ कर रहे हैं. व्हाट इज योर जॉब नाउ? नाउ योर जॉब इज टू स्टार्ट वर्किंग विद देम. बिफोर द मोटिवेशन ऑफ द इवेंट फेड्स, you should build some achievement. So build their achievements before the motivation goes down. So your events are really powerful. I told you in the beginning itself, events are lifeline of this business. We all had one event